Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. sir. Good afternoon. कहाँ तक पढ़े थे last class? Yes. Any one of you? What was the last part taught? Tell me. Satyaranjan, that's one. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर एक आइडिया दिया था. Okay. So highest electronegativity and lowest we have discussed, I think, right? Yes, sir. Yes, the highest electronegativity is of fluorine, that is 4, and lowest is of cesium, that is 0.7. We have discussed. Yes. Okay. Applications of electronegativity, I think we have discussed. Yes or no? Yes, sir. Okay. उसका सब दिन टॉपिक हुआ है. Okay. Now we'll write the calculation of electronegativity. Electronegativity equals to ionization enthalpy plus electron gain enthalpy divided by 5.6, and this should be in electron volt. Okay. Okay, all of you. Yes, sir. Yes. So this is all of your periodic properties. So अभी इसके बाद हम लोग सोचेंगे, पढ़ेंगे एसिडिक नेचर कैसे डिसाइड करते हैं, बेसिक नेचर कैसे डिसाइड करते हैं, वो सब कंपैरिजन किया जाएगा. इससे पहले हम जो लिखेंगे और देखेंगे ये है जनरल outermost configuration of different blocks. ये डायरेक्ट आता है. सब लोग अपना माइक म्यूट कर लो, ऑल ऑफ यू. यस. तो सबसे पहले मैंने लिखा बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स. द जनरल outermost configuration. S block has two groups, two columns. One is alkali metal, one is alkaline hard metal. All the elements of the group 1 elements or alkali metal are ending with or have the outermost configuration like 2s1, 3s1. If we'll write this lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium like this. And if you are writing beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium. So the outermost is 2s1 here, 3s1 here, 4s1 here, 5s1 here, and 6s1 here. Here it is 2s2, here it is 3s2, here it is 4s2, here it is 5s2, and here it is 6s2. So all these elements are collectively known as, if you can write francium here also 7s1 and radium here also, that is 7s2. All these elements are collectively known as S block. Yes or no? Respond karo. All these elements are collectively known as S block elements. Respond karo. Yes? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So this is the group 1, this is the group 1, this is the group 2. So they are collectively known as the S block element. And coming to the outermost configuration, here this is the last orbit. We can take it as N. And since they are belonging to the S block element, that's why the outermost electron will be either 1 in this group or either 2 in this group. So in general we can say NS1 to 2. So this is the outermost configuration of S block element. क्या है सबको क्लियर हुआ? कैसे किया मैं? क्या है सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Okay. So coming to the next one, that is your P block elements. So for P block elements, it will be NH2 and NP 1 to 6. Just go through this: boron, aluminium, gallium, indium, thallium.
Similarly, carbon, silicon, germanium, tin, lead. Like this, you just collect all these elements from group 13 से लेके group 18 तक. सबका अगर outermost configuration देखोगे, इसका अगर देखोगे 2s2 2p1, इसका हो गया 3s2 3p1, इसका हो जाएगा 4s2 4p1. सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा 2s2 2p2, इसका हो जाएगा 3s2 3p2. मीन्स यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स का, ये जो ग्रुप 13 का 2p1 है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का मतलब ये 2p1 3p1 मतलब np1 हम बोल सकते हैं. यहाँ पे np2, आगे np3, np4, np5, np6, मतलब सब में ये 2s2 रहेगा. देखो ये 2s2 सब में रहेगा. बस यहाँ पे क्योंकि p ब्लॉक एलिमेंट्स है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी एंटरिंग इनटू द p सबसेल. जो ब्लॉक उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी सबसेल में एंटर करेगा. अगर यहाँ पे दो मतलब ग्रुप्स है इस ब्लॉक में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे s में गया, यहाँ पे s में गया. ये s1 का ब्लॉक है, s1 का ग्रुप है, ये s2 का ग्रुप है. सिमिलरली अगर ये p ब्लॉक का बात करते हो 13 से लेके 18 तक ग्रुप नंबर, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये पहला वाला जो है वो np1 था. np1 मतलब इसका आउटरमोस्ट 2p1, इसका आउटरमोस्ट 3p1 4p1 5p1 6p1. अगर ग्रुप 14 का बात करेंगे तो एलिमेंट्स का आउटरमोस्ट और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द 2p, और दैट टू 2p2 3p2 4p2 5p2 6p. कमिंग फॉर द नाइट्रोजन ग्रुप 15, वहां पे होगा 3p2 सॉरी 2p3 3p3 4p3 मतलब p3 हुआ, फिर p4 हुआ, फिर p5 हुआ, फिर p6 हुआ. p6 कहां पे ग्रुप 8 है. एक्सेप्शन एक है हीलियम, बट इन जनरल वी कैन से ns2 np 1 to 5 1 to 6, क्योंकि इन सब में s2 सब में s2 है. देखो यहाँ पे भी s2 है, यहाँ पे भी s2 कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये p1 वेरी करेगा, p का इलेक्ट्रॉन वेरी करेगा. पहले में 13 में p1, सेकंड में सबका p2, थर्ड में सबका p3, देन p4, देन p5, देन p6. तो हम क्या इन जनरल क्या बोल सकते हैं 1 से 6. क्या सबको क्लियर हुआ? क्या ये सबको क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी अगर मैं डी ब्लॉक का बात करूं, डी ब्लॉक का ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बात करूं मैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल, तो डी ब्लॉक में याद करो, अगर मैं बोला था इसको स्टैंडियम से लेके कुछ भी बोल दो तो, है ना. जैसे मैंने बोला स्टैंडियम था, तो ये था 4s2 एंड 3d1, ये था. अगर मैं टाइटेनियम उसके राइट बोला तो 4s2 3d2 ऐसा था. तो अगर ये 4 को मैं n लिया, ध्यान से देखो इसको, अगर मैं 4 को n लिया तो ये 3 को मैं क्या लूंगा n-1d. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आया तो कुछ. n यहाँ पे डी सबसेल में क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या हुआ था, यहाँ पे सबका s था, p में क्या था, s का जो कोएफिशिएंट था p का भी वही कोएफिशिएंट था. जैसे मैंने बोला 2s2 2p1 3s2 3p1, तो s का भी 2 और p का भी 2. लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, s का कोएफिशिएंट 4 है, लेकिन d का कोएफिशिएंट 3 है. इट मींस दैट अगर मैं इसको n लूं तो इसके लिए मैं क्या लूंगा n-1. तो ये ns जो है ये कहां से कहां तक रहेगा, 1 to 10 तक रहेगा. क्योंकि जितने जैसे p ब्लॉक में क्या हुआ, जैसे s ब्लॉक में क्या हुआ s1 ये s2 का, p ब्लॉक में क्या होगा, एक p1 का, एक p2 का, एक p3 का, एक p4 का, एक p5 का, एक p6 का. सिमिलर डी ब्लॉक में क्या होगा, 10 कॉलम्स है, 10 कॉलम्स है. तो पहला ग्रुप जो होगा वो d1 का होगा, सबका d1 है. अगर तुम बात करोगे स्टैंडियम का, इट्रियम का, लैंथेनम का, एक्टिनियम का, सबका बात करो तो ये होगा बेटा तुम्हारा 4s2 3d1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5s2 4d1, ये हो जाएगा तुम्हारा 6s2 5d1, ये हो जाएगा 7s2 एंड 6d1. देखो ये सबका देख लो, ये d1 कलम्स है. फिर टाइटेनियम वाला तिवारी जी के हाथ में राइफल, वो होगा d2 कलम. फिर वैनेडियम का जो है ना, वैन को नीले टैंक में डुबा, वो हो जाएगा d3 कलम. सिमिलरली यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकते हैं, पहला ये पार्ट है, n जो है d उसका एक कम है, इसीलिए ns और n-1d, और ये 1 से 10 तक होगा, और यहाँ पे ये 0 से 2 होगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 0 से 2 क्यों हुआ, 0 से 2 क्यों हुआ देख लो, क्योंकि सब में जनरली 2 है. देख लो सब में 2 है. एक एक्सेप्शन याद करो, क्रोमियम में मैंने बोला था 4s1 3d10 बोला था इसको. कपर में बोला था मैं 4s1 सॉरी क्रोमियम में 5, इसका 3d10.
अगर हम बात करेंगे पैलेडियम का, ये 5s04d10। तो ध्यान से देखो इसको, कभी s का इलेक्ट्रॉन 2, कभी s का इलेक्ट्रॉन 1, कभी s का इलेक्ट्रॉन 0। तो सारे वैल्यू को लेके रेंज लेना है। रेंज क्या हो गया, 0 से 2, और कलम के हिसाब से D1 से लेके D10। तो दिस इज द आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। सबको क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये तुम्हें 12th बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक और डी ब्लॉक जो है 12th में है, और एस ब्लॉक 11th में है डिटेल्स में। इन डिटेल्स एस ब्लॉक 11th में, डी ब्लॉक का थोड़ा बहुत जो है 11th में है, और रिमेनिंग पार्ट सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारे 12th क्लास में है। इसलिए बहुत जरूरी है ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोर्ड एग्जाम में तुम्हें 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द जनरल आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन जनरल, यू कैन से इट एज so ns and -1d। सबको क्लियर? सबको क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Okay. And the last one, that is the F block elements. Last one is the F block elements. F block elements क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं हाफनियम बोला, हाफनियम 72 atomic number, so it will be Xenon core बेटा, Xenon core 54, then 4f14, then 5d1, and then this is, you can say it as 6s2 and 5d1. Are these electrons? Are these electrons? Yes, 2, take it 2. Are these electrons? 54, 14, 2, 2. कितना हुआ देख लो, 70, 74, 72 आ रहा है बेटा? Yes, sir. आ रहा है 72? Yes. तो यहाँ पे देख लो, अगर मैं इसको NS बोलूं, ध्यान से देखो, 3 चीजें यहाँ पे। एस ब्लॉक में आउटरमोस्ट में सिर्फ एस है, ध्यान से सुनो, एस ब्लॉक में आउटरमोस्ट में सिर्फ एस है, टी ब्लॉक में एस है, पी है, डी ब्लॉक में एस है और डी है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो, अगर एफ ब्लॉक तुम बात करोगे, ये तो मतलब इससे पहले वाला हुआ, अगर तुम एफ ब्लॉक का पहला अगर हम बात करें, ये तो एफ ब्लॉक का नहीं हुआ बेटा, नीचे लिखते हैं इसको। एफ ब्लॉक का अगर मैंने बोला सेरियम एटॉमिक नंबर 58, सेरियम एटॉमिक नंबर 58, ये एक लांथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, Xenon core 54 इलेक्ट्रॉन बेटा, उसके बाद हो जाएगा 6s2, 5d1, 4f1। चेक कर लो ये आ रहा है क्या, चेक कर लो, 54 2 1 1 आ रहा है, 58 आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अभी ये तो एफ ब्लॉक का नहीं है, अभी ये देखो, तो ये एक एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में अगर मैं एस को, तो यहाँ पे क्या क्या है, एस बी है, डी बी है, सी बी, एस बी है, एस बी, डी बी और एस बी। अगर मैं इसको एन ले लिया बेटा, इसको अगर मैं एन लिया 6 को, तो ये क्या हो जाएगा, n-1 डी होगा कि नहीं होगा, बताओ, रेस्पॉन्ड करो, रेस्पॉन्ड करो। Yes, sir. Yes, sir. और ये 4 क्या होगा, n-2f होगा कि नहीं होगा? अगर 6 को मैं n ले लिया, डी का कोएफिशिएंट एस का कोएफिशिएंट से कम है, और एफ का कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट से 2 कम है, तो ये जनरल फॉर्मेट में आ गया। देखो जनरल फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, NS n-1d then n-2f। यहाँ से सबको क्लियर हुआ क्या? यहाँ से सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, तो अभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 कर लेंगे, सब में 2 ही होगा। ये इलेक्ट्रॉन कभी कभी एक्सेप्शनली 0 हो जाता है, ये 1 से 40। देखो तो ये चारों चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर योर स्कूल लेवल एग्जाम एंड फॉर योर एंट्रेंस लेवल एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तो नहीं पूछता जनरली, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट। जनरल आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है बोलो, देखो एस सब में है, एस सब में है, देख लो एस सब में, एस ब्लॉक में सिर्फ एस है, सी ब्लॉक में एस एंड सी, डी ब्लॉक में एस एंड डी, एंड एफ ब्लॉक में एस भी है, डी भी है, एफ। ये रीजन यही है, सबको एस तो रहेगा ही, ये रीजन यही है, बिकॉज दीज आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दीज आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मींस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर exactly present inside D block, that's why D is also there and F is also there। पूरा क्लियर हुआ सबको? सबको पूरा क्लियर हुआ? Yes, sir. Take the screenshot, take the screenshot। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो।
पुरुषोत्तम समझ में आ रहा है बेटा? पुरुषोत्तम Yes, sir. ओके। सुचिस्मिता समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। एरोश्री समझ में आ रहा है? Yes. ओके। आयुषा समझ में आया? Yes, sir. ओके। निखिल निखिल समझ में आया? निखिल ओके। सो नाउ आई एम इरेजिंग दिस वन। सो अभी हम देखेंगे इससे जो एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है वो जो मेजर पार्ट है वो है एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। तो पर्टिकुलर अगर हम एसिडिक नेचर समझ गए तो हमारे लिए हो जाएगा इजी। तो देख लो। तो यहाँ पे एसिडिक नेचर जो है वो हर कंपाउंड्स के लिए अलग होता है। कुछ कंपाउंड्स हैं ऑक्साइड्स, कुछ कंपाउंड्स हैं हाइड्रोक्साइड, कभी कंपाउंड्स आएगा हाइड्राइड, कभी कंपाउंड्स आएगा ऑक्सो एसिड। दीज आर टाइप मेनी वेराइटीज ऑफ कंपाउंड। ओके। अगर एक कंपाउंड के साथ अगर एक कंपाउंड में मैं पहले लिखा हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब होता है बेटा जैसे सिंबल है, एक एलिमेंट है और ये हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर अगर कंपाउंड बना रहे हैं, कोई भी एक सिंबल, कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक एटम और सिर्फ वो हाइड्रोजन को कैरी कर रहा है, इसको हम हाइड्राइड बोलते हैं, है ना। तो जैसे मैंने बोला HCl एक हाइड्राइड है, जैसे मैंने बोला H2O एक हाइड्राइड है, अमोनिया एक हाइड्राइड है ना, ये सारे एक हाइड्राइड है, HI एक हाइड्राइड है। तो ये हाइड्राइड का मतलब है कोई एक मतलब एलिमेंट है उसके साथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई एलिमेंट भी कितना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इन्हीं दो टाइप के एटम्स रहेंगे, एक कोई एलिमेंट और कोई हाइड्रोजन। तो इनका एसिडिक नेचर जब कंपेयर हम करेंगे, ध्यान से देखो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है। मैंने लिखा इफ द हाइड्राइड बिलोंगिंग टू द along the period acidic strength of hydride, ध्यान से देखो बेटा, directly proportional to the electronegativity of the central atom। देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखा मीथेन, अगर मैं यहाँ पे लिखा मीथेन, यहाँ पे लिखा अमोनिया, यहाँ पे लिखा वाटर और यहाँ पे लिखा एसिड। ओके। तो सेंट्रल एटम कौन होता है? जैसे जो हाइड्रोजन है वो कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है। तो अगर हाइड्रोजन को छोड़ के और कोई एक ही टाइप का एटम है तो वही सेंट्रल एटम है ना। तो क्या लिखा गया देखो, दिस इज द थ्योरी, इंपोर्टेंट थ्योरी। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड, दीज आर द हाइड्राइड which are belonging to the same period, if the hydrides are belonging to the same period, then their acidic strength is direct proportional to the electronegativity of the central atom। Tell me what is the electronegativity of this carbon? जल्दी बताओ। Yes, what is the electronegativity of carbon? Already discussed in the last class। जल्दी। Sir, 2.5. 2.5। For nitrogen it is 3.0. 3.0। For oxygen it is 3.5 3.5। For fluorine it is 4 4.0। डन। ये लास्ट क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अभी सिंपली लॉजिक पुट करो, थ्योरी पुट करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो अगर ये बोला गया एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सारे देखो, ये सारे एक ही पीरियड में होना जरूरी। पहले अगर हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन पूछा, पहले तुम्हें फाइंड आउट करना है वेदर दे आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड और सेम ग्रुप। अगर सेम पीरियड में है, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द कांसेप्ट, दिस इज द डाटा यू हैव टू रिमेंबर, electronegativity and of the central atom। So since the electronegativities are getting increased from left to right, so the acidic strength is also increased by this। So this is the order of acidic strength। So it means that methane is less acidic than ammonia, then which is less acidic than water, and the highest acidic strength among these is HF। क्या सबको क्लियर हुआ? क्या ये सबको क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, कमिंग टू sir. द नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो ये सारे चीज तुम्हें एंट्रेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ये हुआ पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा डाउन द ग्रुप और इन ए ग्रुप। इन ए ग्रुप क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ
of hydride is directly proportional to the size of central atom. Size of central atom. This is the theory. See, I'll write some hydrides in a group. That is, I'll write I'll write HCl. Before that, I'll write HF, HBr, and HI. So hydrogen is not a central atom. Central atom is which? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. These are the central atoms. तो साइज किसका बड़ा है? जल्दी बताओ. साइज किसका बड़ा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? increases. इंक्रीजेस. तो इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका है? सबसे बड़ा साइज किसका है? Iodine. आयोडीन का. तो साइज अगर बढ़ रहा है ऐसे, तो दिस इज द आंसर. दिस इज द आंसर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ. दिस इज द आंसर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ. ओके, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है. तो सेम थिंग अगर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसी के रिलेटेड, मैंने अगर H2O लिखा, मैंने अगर H2S लिखा, मैंने अगर H2AC लिखा, मैंने अगर H2TE लिखा, टेल मी what is your answer? Which among this will be highest acidic? Yes, Sir, H2TE. H2TE. So this is the answer. अगर तुम यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट पुट करोगे तो ये विल बी गोइंग इन ए रिवर्स वे. दोनों के लिए अलग अलग क्यों है? तुम बोलोगे क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि इनऑर्गेनिक में पहले आंसर आया, उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढा गया. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ यू गेट ए क्वेश्चन मींस कंपेयर हाउ टू कंपेयर दिस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अमंग द हाइड्राइड्स, तो या तो ये एक पीरियड में दिया होगा या तो एक ग्रुप में दिया होगा. पहले तुम्हें देख लेना, ये जो सेंट्रल आइटम को देख के समझ में आ जाएगा ये सेम पीरियड में है, सेम ग्रुप में है. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन सेम पीरियड. सिमिलरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन सेम ग्रुप. So for a group, size of the central atom. For a period, it is electronegativity. अगर यहाँ पे तुम देख लो, अगर तुम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पुट करोगे गलती से, ये पीरियड के लिए है, ये ग्रुप के लिए साइज. तो अगर तुम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव देखोगे तो किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा? जल्दी बताओ. इनमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? किसका ज्यादा है बेटा? यस, रेस्पॉन्ड करो. फ्लोरीन का. क्लोरीन का. तो वो काम नहीं करेगा. यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को देख के ये सेट किया गया, क्या ऐसे फैक्टर है जो बढ़ने से ये बढ़ रहा है, तो इसीलिए किया गया. तुम अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेट पुट करोगे, यहाँ पे फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, तुम बोलोगे क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इट इज द कंसेप्ट, द लॉजिक, द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. ये पहले निकला, देखा गया एसिडिक. तुम लोग जानते हो, स्कूल लेवल पे पढ़े होंगे एसिड कौन ज्यादा एसिडिक है, वो पीएच पेपर से उसको निकालते हैं. तो पीएच वैल्यू देखा गया, सबसे ज्यादा इसका है. तो रिजल्ट ढूंढा गया किससे ज्यादा हो सकता है, क्या इसमें ज्यादा है, सो दैट इसका ज्यादा है. देखा गया इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और सबका ही. और ये ट्रेंड सब सारे ग्रुप में, सारे पीरियड में काम किया. सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, सब में काम किया. तो यहाँ पे देखा गया HCl, HBr एंड ये. तो तुम बोलोगे सर इसका रीजन क्या है? एग्जैक्टली आप रीजन बताइए सर, एग्जैक्टली क्या हो रहा है. देख लो, अगर मैं यहाँ पे HF बोल रहा हूँ, देखिए HF, यहाँ पे HCl बोल रहा हूँ, यहाँ पे HBr बोल रहा हूँ और यहाँ पे HI बोल रहा हूँ. इनका ऑर्बिटल तो अलग अलग होता है. लेट मैंने इनका ऑर्बिटल को बोला, ये H एक है और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, इसका साइज छोटा है, इसका साइज और बड़ा, ये और बड़ा, ये और बड़ा. तो जितना छोटा साइज होगा, ध्यान से सुनो, जितना छोटा साइज होगा दोनों का न्यूक्लियर पूल ज्यादा होगा. लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड, स्मॉल इज द साइज, मोर इज द न्यूक्लियर पूल. क्योंकि बड़ा साइज होने से उसका न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर बहुत सारे काम करेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसको छुपा देंगे, वो अंदर चला जाएगा. जितना छोटा साइज उसका न्यूक्लियर पूल ज्यादा. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पूल किसका होगा? सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पूल किसका हो ज्यादा? फ्लोरीन का. फ्लोरीन का ज्यादा होगा. तो ये फ्लोरीन देखो क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऐसे पकड़ के रखेगा. मेरा हाथ का मूवमेंट को देखो, ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन इज फिक्स्ड बिकॉज हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑल. तो ये फ्लोरीन है जिसका साइज छोटा, तो न्यूक्लियर पूल काफी ज्यादा, तो ये इसको ऐसे पकड़ के रखेगा, है ना, पकड़ के रखेगा. सोचो, क्लोरीन आया, लूज हो जाएगा थोड़ा, ब्रोमीन आया और थोड़ा लूज हो जाएगा, और आयोडीन आया, लूजली बॉन्डेड. बिकॉज ऑफ लार्जर साइज, द न्यूक्लियर पूल ऑफ आयोडीन इज लिस्ट. अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का हम बात कर रहे हैं बेटा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है कौन कितने अच्छे से H+ को छोड़ दे रहा है.
जो जितना जल्दी H+ को छोड़ देगा वो उतना एसिडिक है। समझ में आ रहा है सबको? जो जितना जल्दी H+ को छोड़ देगा वो सब उतना ज्यादा एसिडिक है। क्या ये पॉइंट तुम समझ रहे हो? क्या ये पॉइंट तुम समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मुझे बताओ, अगर मैं इसमें ये बताया तुम्हें कि अगर मैं बताया बॉन्ड एनर्जी बोला, बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी इसका ज्यादा होगा देन इसका, क्योंकि न्यूक्लियर पूल अगर हम बात करें, न्यूक्लियर पूल, तो न्यूक्लियर पूल सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन। जो जितने अच्छे से खींचा, बॉन्ड एनर्जी मतलब क्या है? ये जो इनके अंदर का जो बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी खर्चा होगा, इसको तोड़ने के लिए, दोनों को अलग करने के लिए जो एनर्जी खर्चा होगा उसी को बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसका होगा क्योंकि टाइटली बॉन्डेड है। क्लोरीन टाइटली बॉन्ड किया है, ज्यादा ओवरलैप किया, आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इनका है, इसका है, और सबसे कम इसका है, जैसे अगर इसका बॉन्ड एनर्जी लेट इट इज 100, लेट इट इज 90, लेट इट इज 70, लेट इट इज 60 बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब 100 एनर्जी देने से ये टूट जाएगा, और 90 देने से ही टूटेगा, 70 देने से टूटेगा, 60 देने से टूटेगा। हमारा काम तो वही है ना, H+ कैसे अलग हो जाए, आयोडीन से H+ कैसे जल्दी अलग हो जाए, इससे H+ कैसे जल्दी अलग हो जाए, इन दोनों से जो जितना जल्दी H+ को छोड़ेगा वो उतना एसिडिक है। सोचो इसको 100 देने से एनर्जी टूटेगा, मतलब ये टूटेगा, ये 90 देने से टूटेगा, ये 70 देने से टूटेगा, और ये 60 देने से टूटेगा। तो कहां पे जल्दी H+ बनेगा, जल्दी बताओ, कहां पे जल्दी H+ बनेगा? लास्ट वाले केस में, तो लिस्ट बॉन्ड एनर्जी, साइज बड़ा, बॉन्ड एनर्जी साइज बड़ा, तो न्यूक्लियर पूल कम, तो बॉन्ड एनर्जी कम, तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटा तो ज्यादा एसिडिक होगा। इसीलिए बेटा ये HI का सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर है। ये हम एक्सप्लेनेशन इसको डाटा को देखते हुए, इसका पीएच वैल्यू को देखते हुए स्टेट व्हाई विथ मोर साइज दिस इज देयर। तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हुआ, देखो जैसे तुम कोई एक सामान को लेके दोनों खींच रहे हो, वो भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, अगर मिडिल में है, दोनों का जो सामान जो है इन दोनों के मिडिल में है, तो इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। अगर किसी के तरफ चला गया, तो तुम्हारा भाई का लड़ाई हो गया, तो एक सामान को लेके तुम उसका 95% ले चुके हो, 95% ले चुके हो, इसका मतलब अभी वो ब्रेक होना इजी है, मतलब वो ताकतवर है ही नहीं, बहुत वीक है वो, तो इमीडिएटली टूट जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैंने बोला HF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, मतलब ये H का और F का जो बॉन्ड पेयर है, H का और F का जो बॉन्ड पेयर है, अगर यहाँ पे तो बॉन्ड पेयर देखोगे, अगर HF का देखोगे, H और F का, तो बॉन्ड पेयर पूरा नजदीक रहा हो, जबकि अगर HO का बात करोगे, HO का, तो ये पूरा नजदीक नहीं, थोड़ा गैप में रहा हो। और अगर तुम HN का बात करोगे, ये और थोड़ा इस तरफ रहेगा। तो बोलने का मतलब अगर ये पेयर जिसके लिए लड़ाई हो रहा था, ये ऑलरेडी उसके पास जा चुका है, तो अब पूरा जाना कितना इजी, बहुत इजी होगा, क्योंकि ऑलरेडी खींच चुका है। तुम अगर तुम्हारे भाई के साथ लड़ाई हुआ और तुम 95% उसका ले चुके हो, नाउ दिस 100% टेकिंग विल बी वेरी, so that's why if the more electronegativity is there in case of central atom, then the bond can easily be broken down, so H+ can easily be formed, that's it is more acidic. But this thing is applicable along the period and this thing will be applicable down the group. दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, उसके लिए अलग सोचोगे, इसके लिए अलग। पूरा क्लियर हुआ सबको? पूरा क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। सर बोल। सर हम एटॉमिक साइज वाली चीज सर अलोंग द पीरियड भी तो डाल सकते हैं। मैं वही बोला ना बेटा, सबसे पहले इनका एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड होता है माइक अप कर लेवल। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे पहला वाला है। देखो केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में क्या होता है, अगर एक मैकेनिज्म बना, एक कंसेप्ट बना, वो सबके लिए काम करेगा। अगर मिथानॉल जिसके साथ रिएक्ट किया, इथानॉल भी उसी के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोपानॉल भी उसी के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे बात अलग है इनऑर्गेनिक। यहाँ पे अगर तुम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो, हीट करने से वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, वहीं पे अगर सोडियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो देगा ही नहीं। तो यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटली पहले डिसाइड हुआ फ्रॉम द पीएच वैल्यू और पीएच पेपर टेस्टिंग, देखा गया इसका ज्यादा है। फिर सोचा गया
क्या ऐसा रीजन रहा होगा तो दैट इसका ज्यादा है और इसका कम? देखा गया यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे उसका लॉजिक सेट कर दिया और रीजन भी बताया मैं. if the atom is more electronegativity, it is having more electronegativity, then the shared pair of electrons will be shifted more towards it. Here it is 2.1, here it is 4. Here it is 2.1, here it is 3.5. ये 4 is 3.5, ज्यादा पावरफुल 4 है तो ज्यादा खींचा होगा. अगर तुम्हारा तुम्हारे भाई के लड़ाई में कोई सामान पड़ेगा, अगर 50-50%, वो 50 पकड़ा है तुम 50 पकड़े हो, तो वो लड़ाई बहुत दूर तक चलेगा, वो लड़ाई बहुत दूर तक चलेगा, बहुत देर तक चलेगा. अगर तुम्हारे पास 30%, तुम्हारे भाई के पास मतलब 70% है, तो अभी चांस बढ़ गया वो 70% पर लेने का. तो ये हाइड्रोजन फ्लोरीन तो ये 95% ले चुका है. तो 95% जो ले चुका है ना, मतलब इसके कंपैरिजन में इसका पावर बहुत कम है, तो बहुत चांस है उसको छीन ले, पूरा टूट जाए, तब जाके ये H+ अलग. तो इसका रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रेस्पेक्ट में हम एक्सप्लेन किए, क्योंकि ये पहले ऐसा आंसर आया. इसमें देखा गया इसका पीएच ज्यादा है, मतलब इसका पीएच जो है एसिडिक है. एसिडिक पीएच मतलब तुम लोग स्कूल में पढ़े होंगे, पीएच स्केल पढ़े होंगे, पीएच स्केल. 7 इज द न्यूट्रल पीएच, 7 इज द न्यूट्रल. और अगर 0 के तरफ जाओगे वो एसिडिक है. अगर 14 के मतलब इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, अगर तुम 14 के तरफ जाओगे वो इंक्रीजिंग बेसिक नेचर. तो अगर तुम्हारा एक का पीएच अगर 1 हुआ, एक का पीएच अगर 3 हुआ, तो जिसका 1 है वो ज्यादा एसिडिक है. यस और नो? जिसका 1 है उसका ज्यादा एसिडिक है. क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. क्लियर हो रहा है? ये पीएच स्केल तुम लोग स्कूल लेवल में पढ़ चुके हो. तो इसका मतलब अगर इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक यही है बेटा, तो इसका पीएच सबसे कम होगा. पीएच एंड एसिडिक नेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज 7 इज द न्यूट्रल. 7 इज द न्यूट्रल. देखो 0 से लेके 14 तक, तो 0 जो है वो हाईएस्ट एसिडिक है, 14 जो है वो हाईएस्ट बेसिक है. मतलब अगर 7 न्यूट्रल है तो 7 से 0 के तरफ एसिडिक नेचर बढ़ रहा है और 7 से 14 के तरफ बेसिक नेचर बढ़ रहा है. तो अगर ज्यादा एसिडिक तो फिर पीएच क्या है? कम है. तो पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी है, थियोरेटिकल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली पीएच पेपर मतलब पीएच पेपर से हम पता कर सकते हैं कौन ज्यादा एसिडिक है. देखा गया ज्यादा एसिडिक है, फिर रिजल्ट ढूंढा गया क्या ऐसा कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस केस में ज्यादा है, सो दैट इट इज मोर एसिडिक. देखा गया इसका साइज ज्यादा है, और साइज ज्यादा होने से क्या होगा? न्यूक्लियर पूल कम होगा. न्यूक्लियर पूल कम होने से क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी इसका कम है तो जल्दी ही टूटेगा. यहाँ पे खींच लिया तो जल्दी टूटेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर. यहाँ पे साइज बड़ा है तो न्यूक्लियर पूल कम है तो बॉन्ड एनर्जी कम है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड एनर्जी वाला कंसेप्ट हुआ और यहाँ पे ये खींच लिया इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ये लॉजिक यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया. तुम दोनों उल्टा करके देखो, तुम्हारा आंसर गलत आएगा. अगर तुम यहाँ पे साइज का बात करोगे, साइज का बात करो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सॉरी, साइज का बात करो, साइज लेफ्ट राइट डिक्रीजेस, साइज लेफ्ट राइट डिक्रीजेस. सबसे बड़ा साइज इसी का ही है, सबसे बड़ा साइज इसका है. आउट ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लूइड सबसे बड़ा साइज इसका है. अगर साइज फैक्टर डायरेक्टली पुट करोगे सबसे ज्यादा एसिडिक ही होना चाहिए. क्या मीथेन, तुम जानते हो मीथेन जो है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, स्कूल लेवल में पढ़े होंगे. HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ये ज्यादा एसिडिक है. नाम ही देखो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. इट इज न्यूट्रल, तुम लोग पढ़े होंगे. ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वाटर न्यूट्रल, ये एक बेस है, तो सोचो एसिडिक भी इसी का ज्यादा है ना. तो इसीलिए वो साइज फैक्टर यहाँ पे काम नहीं कर सकता. सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम नहीं कर सकता. एक एग्जांपल याद रख लोगे और थ्योरी पहले याद मत रखो, एग्जांपल याद रखो. एग्जांपल में इनके अंदर ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसका क्या ज्यादा है? इसका क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा. तो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लेज द इंपोर्टेंट रोल टू डिटरमिन द एसिडिक स्टेट. ये एग्जांपल याद रख लो. ये एग्जांपल इनमें से HI हाईएस्ट एसिडिक है, इसका क्या ज्यादा है? साइज ज्यादा है. साइज ज्यादा है तो साइज फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अलोंग द डाउन द ग्रुप. सबको क्लियर हो रहा है? सौरदीप क्लियर हुआ? यस सर. ओके. तो इसीलिए इनऑर्गेनिक स्ट्रेन को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कुछ चीज पार्ट है जो समझ गए तो इजी रहता है. ये अभी तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे. हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. और इसमें आता है मेटलॉइड. मेटलॉइड डिस्कस कर चुके हैं हम पीरियडिक टेबल में, मैं बता दिया जाने के साथ क्या कैसे याद रखा जाए.
फिर एम्फोटेरिक एलिमेंट्स बता दिया गया, है ना। अच्छा, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स में बेटा जो गाना बोला था, उस गाने में एक सेट नहीं हुआ था, वो है बेरिलियम, है ना, Be। वो एम्फोटेरिक में जहां पे लिखे उसको ऐड कर लेना, वो गाने में सेट नहीं हुआ इसलिए उसको ऐड नहीं किया गया, इसलिए मैं जनरली वो गाने को बोलता हूँ और जब मैं एम्फोटेरिक एलिमेंट डिस्कस करता हूँ वहां पे एक्स्ट्रा बोल देता हूँ, बेरिलियम Be लिख देना, है ना। एम्फोटेरिक एलिमेंट था ना तुम्हारा, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, उसमें बस वो ऐड कर लेना तुम्हारा, कौन सा, बेरिलियम Be ऐड कर लेना। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे ऑक्साइड, so for oxide the acidic strength will be directly proportional to the oxidation state of central atom, oxidation state of the central atom। ओके, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, या तो एक सॉल्व कर देता हूं, फिर समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला N2O एंड NO, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, कौन बताएगा जल्दी। जल्दी, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है बेटा? सौरदेव। सर नाइट्रस ऑक्साइड। क्या तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते हो? जानते हो क्या नहीं जानते हो? तो जानते, थोड़ा याद कर रहे हैं। अच्छा ठीक, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर आएगा, रेडॉक्स रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कैसे होता है ऑक्सीडेशन। ये एक ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड। और ऑक्साइड का सिंबल हमेशा बेटा, ऑक्साइड का सिंबल हमेशा होता है O2-, ये इसका सिंबल है, तुम क्लास 9th में इसको पढ़े, है ना। तो यहाँ पे अगर इसका ये -2 चार्ज होगा, एक ऑक्सीजन है तो -2 चार्ज है, तो इस नाइट्रोजन का चार्ज क्या होगा पता मुझे, इस ऑक्सीजन का चार्ज -2 है। यहाँ पे मैं कितना चार्ज लिखूं, क्योंकि पहले तो ये 0 था ना, पहले तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसका मतलब जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। हमें बताना है N का चार्ज क्या है, हमें बताना है N का चार्ज क्या है, सेंट्रल आइटम तो V है ना। तो ऑक्साइड का चार्ज यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो -2 चार्ज, तो यहाँ पे कितना चार्ज होने से, दोनों मिला देने से वो 0 हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी। +2। तो here in this nitric oxide the oxidation state of nitrogen is +2। क्या लिखे हम, acidic strength is directly proportional to the oxidation state of central atom, है ना। उसके बाद मुझे बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन का हुआ -2, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है तो -2, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन का चार्ज क्या होगा बेटा, प्लस होगा कि नहीं होगा बताओ, अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अगर 2 नाइट्रोजन का अगर +2 है तो एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है तो ये +2, यहाँ पे एक नाइट्रोजन +1, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट किसका ज्यादा है, कहाँ पे नाइट्रोजन का ज्यादा है, जल्दी बताओ। NO। तो इन दोनों में अगर कोई मोर एसिडिक पूछा गया, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ऑक्साइड है, आइटम सेम है, क्या करोगे बेटा, सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फिर हो गया, है ना। चलो और एक क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था सर। ये कौन सा बॉन्ड होगा? यस सर ये NO2 है, उसके पास इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है सर। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीडेशन स्टेट हम जब पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में हो या कोवेलेंट बॉन्ड में हो, अगर उसको हम आयनिकली तोड़ दें, अगर उसका आयंस बना दें, जो चार्ज होता है वो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं।
जरूरी नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का ही होगा। जैसे मैंने बोला HCl, देख ले, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ HCl, तो अगर HCl है, इससे कोवैलेंट मॉलिक्यूल, बिल्कुल ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। हाँ, लेकिन ये पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। जब इसको हम पानी में डालेंगे बेटा, H2O पानी में डालेंगे, क्या बन जाएगा? H+ एंड Cl-। तो यहाँ पे जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे दोनों जो है वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं, चाहे वो इलेक्ट्रोवैलेंट हो। जैसे मैंने बोला NaCl को पानी में डाल, क्या होगा? Na+, Cl-। तो यहाँ पे ये प्लस चार्ज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे ये माइनस चार्ज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन यहाँ पे कोवैलेंट है तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है, इलेक्ट्रोवैलेंट तो भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोवैलेंट होने से ही होगा। अगर इसको हम तोड़ दें, इससे रिलेटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है इसके रिलेटिव में इसका चार्ज क्या है। ये -1 हुआ इसीलिए इसके रिलेटिव में +1, ये -1 हुआ इसीलिए +1। अगर मैंने बोला होता सोडियम, या तो अगर मैं ऐसे बोलता MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो इसका ये +2, तो इसके रिलेटिव में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसके रिलेटिव में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2। दोनों का चार्ज होगा अगर इसको हम तोड़ दें, कोवैलेंट मॉलिक्यूल हो या आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड रादर व्हाट यू हैव आस्क्ड इज दीज आर द कोवैलेंट मॉलिक्यूल, नॉट इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो माय क्वेश्चन इज फाइंड आउट द, समझ में आया बेटा? समझ में आया जो पूछा तो? यस सर। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बोलूं फाइंड आउट द decreasing order of reactivity of the following oxides towards caustic soda। This is the question, ये JEE एडवांस में आया था ये क्वेश्चन, बना। Yes, any answer? सर Mn2O7, सर उसके बाद MnO3, Mn2O3, जैसे 2O5, उसके बाद Mn2O3, उसके बाद MnO। अच्छा, any other answer? So Mn2O7, Mn2O5, Mn2O3, MnO3 and MnO. Okay. Any other answer? Sir, हाँ, बोल। MnO3, Mn2O3 and MnO। Okay. Sir, Mn2O7, MnO3, Mn2O3, Mn2O5 and MnO। अच्छा,
ओके देखते हैं बेटा क्या होगा इसका. So these are the oxides. The central atom is same. The central atom is same. The manganese, it is same for all. And these are the oxides of the same metal, same central atom. तो लेकिन different oxides. Caustic soda. Caustic soda होता क्या बेटा? Caustic soda is NaOH. NaOH is a very strong base. The theory is strong base reacts with stronger acid. जितना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है. और क्या पॉइंट बोला? स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्गर एसिड. स्ट्रॉन्ग होने से जल्दी रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्गर के साथ. तो ये जितने सारे ऑक्साइड किया गया, इन ऑक्साइड्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल दें. जो ज्यादा एसिडिक होगा वो ज्यादा रिएक्ट करेगा कॉस्टिक सोडा के साथ. लॉजिक समझ रहे हो? लॉजिक समझ रहे हो सब लोग? लॉजिक समझ रहे हो? Yes, sir. यस Yes, बेटा. sir. ओके. तो एसिडिक स्ट्रेंथ जिसका ज्यादा, किसका ज्यादा होगा? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है. और एसिडिक स्ट्रेंथ जिसका ज्यादा होगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा. तो अल्टीमेटली अगर हम डायरेक्टली जोड़ दें इसको, तो दिस विल रिएक्ट विथ मोर ईज विच इज हाईएस्ट एसिडिक. तो उसका देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. डायरेक्टली मैं यहीं पे लिख लेता हूँ बेटा. इसका -2 है तो इसका ऑब्वियसली +2 होगा. तो इस मॉलिक्यूल में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट, इस मॉलिक्यूल में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है? +2 है. यहाँ पे इसका -6, 3 ऑक्सीजन है ना बेटा, इसलिए -6 है. यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है इसलिए -10 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का माइनस, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो -2 हो गया. मतलब इसके रिलेटिव में Mn का चार्ज हम डिसाइड करें. अगर ज्यादा Mn है तो हमें एक Mn का चार्ज देखना है, तब जाके कंपेरिजन होता है ना. यहाँ पे एक Mn है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे 2 है, हमें एक का लेना. यहाँ पे 2 है, हमें एक का लेना. यहाँ पे 2 है, हमें एक का लेना. एक होता. तो पहले मैं ऑक्सीजन का चार्ज लिख लेता हूँ, फिर Mn का सेट करूँ. तो ऑक्सीजन 1 है तो -2, ऑक्सीजन 3 है तो -6, ऑक्सीजन 5 है तो -10, ऑक्सीजन 3 है तो -6 एंड ऑक्सीजन 7 है तो -14. ओके. तो कमिंग टू द चार्ज ऑफ दिस, ये हुआ तुम्हारा -6, तो ऑब्वियसली +6. यहाँ पे ये -10 है तो ये क्या हो गया तुम्हारा? +10 होगा. लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए बेटा. हमें ये, इसका +10 है, इसका +6 है, इसका +14 है. लेकिन हमें ये 2 का +10 है, एक का क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा +5. यहाँ पे 2 का है +6, एक का क्या हो जाएगा? +3. यहाँ पे 2 का है +14, एक का क्या हो जाएगा? +7. क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा. तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ बोला, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बोला मैं, तो क्या ऑर्डर होगा? कौन बताएगा मुझे? सबसे ज्यादा इसी का होगा, देखो, क्योंकि +7 मतलब सबसे ज्यादा ये, देन ये, देन ये, देन ये, देन ये. बस चार्ज को देख लो, ग्रीन मार्कर में जो लिखा है, +7, देन +6, देन +5, देन +3, देन +2. तो क्या हो गया? सबसे पहले Mn2O7 ग्रेटर देन MnO3 ग्रेटर देन Mn2O5, Mn2O5 ग्रेटर देन Mn2O3 ग्रेटर देन MnO. तो अगर मैं बोलूं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स NaOH और कॉस्टिक सोडा सेम होगा, जो है वही होगा आंसर. तो हाईएस्ट रिएक्टिव अगर पूछा तो ये है, लोएस्ट रिएक्टिव अगर पूछा तो ये है, ऑर्डर पूछा तो ये. सबको क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? यस सर. किनका आंसर ये आया था? नाम बताओ अपना. सर श्रेयश्री. सर वंशिका. वंशिका, वेरी गुड बेटा. नेक्स्ट सर श्रेयश्री. Sauradeep, Shreyasri, very good. Again, any other student has got the answer? Yes. Okay. So take the screenshot. Take the screenshot. चलो मैं सीरियस कर रहा हूँ. यहाँ पे देखो क्या हुआ. Mn कांस्टेंट था, Mn कांस्टेंट था. मैंने क्या किया? ऑक्सीजन को बदल दिया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो चार्ज अलग. अभी हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को फिक्स रखेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन को फिक्स रखेंगे, सेंट्रल एटम को बदल देंगे. तो देखते हैं क्या हो रहा है. देख लो, ये सारे चीज एंट्रांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ऐसे ही डायरेक्टली आता है एंट्रांस.
जैसे मैंने बोला अगर N2O3 then P2O3 AH2O3 and Sb2O3 है ना, या तो मैं सेंट्रल एटम को फिक्स रखूं या तो मैं ऑक्सीजन को फिक्स रखूं। ये ऑक्सीजन को मैंने फिक्स रख लिया और ये एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं और ये एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ओके, सो इस केस में क्या हुआ देख लो, यहाँ पे जो लॉजिक काम करेगा, चाहे वो पीरियड में है चाहे वो ग्रुप में, चाहे वो पीरियड में है चाहे वो ग्रुप में है, तो ध्यान से देखो इसको। एसिडिक स्ट्रेंथ of oxides directly proportional to the electronegativity of central atom। जैसे हाइड्राइड में ग्रुप के लिए अलग लॉजिक था, इसके लिए पीरियड के लिए अलग लॉजिक था, इसमें ऐसा कुछ नहीं। बोथ इन पीरियड एंड ग्रुप। तुम बोलोगे क्यों नहीं है, उसका कोई रीजन नहीं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे रीजन निकाला जाता है इनऑर्गेनिक। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है बेटा। तो अगर इसका बेसिक स्ट्रेंथ पूछा होता, ध्यान से सुनो, अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछा होता तो उल्टा हिस्सा, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल। दोनों याद मत रखो, कंफ्यूजन होगा, एक ही याद रखो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट ऑक्साइड, ये ऑक्साइड के लिए है, बार बार बोल रहा हूँ। हाइड्राइड का अलग रूल, ऑक्साइड का अलग रूल, और कोई आएगा तो उसका भी अलग रूल रख सकता है ना। तो क्या कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जल्दी बताओ। 2O3। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, पढ़ चुके हैं हम, लास्ट क्लास पढ़े थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में लेफ्ट राइट बढ़ता है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर साइज का देखोगे, देखो साइज ऐसे बढ़ रहा है पीरियड में, ऐसे बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा। साइज अगर ग्रुप में देखो ऐसे बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं ये मॉलिक्यूल एटम्स लिख दूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमोनी, ऐसे कर लो, तो साइज देख लो, साइज ऐसे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका उल्टा है, तो ऐसे बढ़ेगा। तो जिसका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका एसिडिक ज्यादा है। तो आउट ऑफ दिस फोर व्हिच आर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जल्दी बोलो किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। नाइट्रोजन का बेटा। काम खत्म, इतना क्या क्लियर हो गया, सबको क्लियर हुआ बेटा। यस, चलो नेक्स्ट देखेंगे। मैंने कुछ ऑक्साइड्स ऐसे लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैंने बोला Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, SO3, या तो इसको P2O5 कर लेते हैं, SO3 एंड Cl2O7, है ना। तो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा। यस, Cl2O7 का सबसे ज्यादा होगा। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात करें बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग ये सारे देखो, ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, मैंने बोला था साइज के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज जो है ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख दूं, ये ऐसे बढ़ता है, कैसे, ये 0.1, इसका सॉरी 0.9, सॉरी ये 1.0, ये 1.2, यहाँ पे देखो 3.0, ये ऐसे करके बढ़ता रहता है, ये ऐसे करके बढ़ता रहेगा। इसको हमें याद रखने का जरूरत नहीं है, बस कंपैरिजन जितना मैंने दिया उतना ही काफी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये। तो जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। तो अगर मैंने बोला हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें से कौन है, क्लोरीन।
तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसका है? तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने से वो ज्यादा एसिडिक होगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होने से वो ज्यादा बेसिक होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोला एसिडिक स्ट्रेंथ तो ऐसे बढ़ेगा, अगर मैं बोला बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा होगा। सबको क्लियर हो रहा है बेटा? अरे सबको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो हाईएस्ट एसिडिक ये है, दिस इज हाईएस्ट एसिडिक। हाईएस्ट मतलब पूरा सारे दुनिया में इतने कंपाउंड उसमें नहीं है, इनमें से हाईएस्ट एसिडिक। अगर हम बात करेंगे इसको, ये होगा बेटा हाईएस्ट बेसिक। और देखा जाए तो ये दोनों बेसिक है बेटा, ये दोनों बेसिक, मतलब पीएच जो है उसका 7 ज्यादा होगा। और ये सारे जो है बेटा ये हो गए एसिडिक। हाँ, लेकिन इनमें से इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, चारों एसिडिक है लेकिन इनमें सबसे ज्यादा ये। ये दोनों बेसिक है लेकिन ज्यादा बेसिक है। और ये बेटा तो जानते हो है ना, बोला गया था, कौन सा? जल्दी बोलो, कौन सा? जल्दी बोलो, सब जन की आग सुनो प्रभु अल्लाह। अल्लाह के लिए क्या था? जल्दी बोलो, अल्लाह के लिए क्या था? यस, आम्फोटेरिक एलिमेंट बोला गया था ना, सब जन की आग सुनो प्रभु अल्लाह। अल्लाह के लिए कौन सा एलिमेंट था? एल्यूमिनियम। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आम्फोटेरिक। क्लियर सबको? अरे सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, तुम लोग बताओ। क्या प्रोडक्ट होगा? जल्दी देखते हैं कौन पहले बनाता है, जल्दी बताओ। क्या प्रोडक्ट होगा? So PCl2 plus H2O. क्या आया? पी यही है, 2 है 3 है? ये PCl2 है, PCl3 है? एक से 2 और 3? ओके, एनी अदर आंसर? वंशिका बेटा क्या आंसर आया? Sir, PCl3 plus H2O. PCl3 plus H2O। Faraday, So PCl5 plus 5H2O. PCl5 plus 5H2O। Any other answer? Any other? सत्यम, सत्यम बता बेटा अपना आंसर क्या होगा? PCl3 होगा सर, PCl3। PCl3 होगा, ओके चलो ठीक है। सत्यरंजन क्या आंसर होगा? सत्यरंजन हो गया? रोहित, रोहित रेस्पॉन्ड।
अंजलि रेस्पॉन्ड, अंजलि। पुरुषोत्तम। सर बोले तो PCl3 plus H2। ओके। आयुषा, आयुषा व्हाट इज योर आंसर बेटा? यार सत्यम बता बेटा तेरा आंसर क्या है? सत्यम। सुचिस्मिता, PCl3 plus water। PCl3 plus H2O. ओके ओके। सौरदेव, PCl5 बोला तो ओके। सत्य बेटा, सत्य रेस्पॉन्ड कर, सत्य रेस्पॉन्ड। सर PCl3 plus H2O। ओके। सुश्री, सुश्री व्हाट इज योर आंसर? मिनाली, मिनाली व्हाट इज योर आंसर बेटा? मिनाली रेस्पॉन्ड। So PCl3 plus H2O. अच्छा, तो कोई लोग बोले इसको PCl3, कोई लोग बोले PCl5, क्या होगा? P के साथ 3 क्लोरीन जाएगा और या 5 क्लोरीन जाएगा। P का दोनों एग्जिस्ट करता है। P के साथ अगर क्लोरीन रहता है तो PCl3 भी बन सकता है और PCl5 भी बन सकता है। अगर 3 क्लोरीन हुआ तो ये बने, 5 क्लोरीन हुआ तो ये, तो कौन करेक्ट है? काफी बच्चे जो है PCl3 बोले, सौरदीप बोला PCl5, कौन करेक्ट होगा? क्या लग रहा है सौरदीप? सौरदीप, सौरदीप रेस्पॉन्ड। सौरदीप रेस्पॉन्ड। सत्यम बोला PCl3, सौरदीप बोला PCl5, दोनों गलत है हो ना? हाँ? लग रहा है दोनों गलत है। चल, योर ड्रीम कम्स ट्रू। एसिडिक नेचर शायद रिएक्ट नहीं करेगा। बेटा ये एक एसिड है, अभी भी पढ़े हैं, ये भी एसिड है। क्या कभी एसिड एसिड रिएक्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना? आया समझ में? अरे सब लोगों को समझ में आया? यस सर। Yes. Yes, sir. ओके। हाँ। क्या प्रोडक्ट होगा? क्या प्रोडक्ट होगा जल्दी बताओ। सौरदेव, यस, acidic basic product will be सोडियम सिलिकेट बनेगा ये, है ना? एसिड बेस तो रिएक्ट करेगा। क्या प्रोडक्ट होगा? जल्दी।
Yes. Nikhil, what is your answer? रिएक्शन नहीं होगा सर, Nikhil, दोनों respond. बेसिक है, बेसिक है सर दोनों। दोनों बेसिक है, वेरी गुड, दोनों बेसिक है, ये भी बेसिक, ये भी बेसिक, तो रिएक्शन नहीं होगा, तो नो रिएक्शन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट, या तो लिख लो, 2-4 रिएक्शन है, और जैसे तुम लोग किए हो ऐसे करके ही क्रॉस डालना ताकि याद रहेगी। PCl3 वाटर और PCl5 वाटर लिखो, क्रॉस डालो ताकि याद रहे। देखो तो नेक्स्ट मैंने लिखा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। Do you know what is oxo acid? Do you know? Yes, any one of you? Respond करो, yes or no? नो सर। No. Sir, acid in which oxygen is present. नहीं, तो ये तो Mn2O3 में भी है। ध्यान से देखो, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सो एसिड में ऑक्सो के लिए ऑक्सीजन रहेगा, एसिड के लिए, ये वाला पार्ट के लिए हाइड्रोजन रहेगा, और जिसका ऑक्सो एसिड है वो रहेगा। एग्जांपल लेता हूं, समझ में आएगा। मैंने बोला ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब ऑक्सो एसिड बोला क्या, मतलब हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, और जिसका ऑक्सो एसिड ऑफ के बाद जो जिसको मैं लिखूं वो भी रहेगा। मतलब इसका मतलब ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन में क्या क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को मिला के ऐसा कौन सा कंपाउंड तुम जानते हो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। HNO3. HNO3, NaOH कहाँ से आएगा, NaOH तो सोडियम है। HNO3, HNO2 है ना। नाइट्रिक एसिड नाम है, नाइट्रिक एसिड नाम है नाइट्रस एसिड। So these are the oxo acids of nitrogen. Similarly, if I'll write oxo acids of sulfur, tell me, जल्दी बताओ, जल्दी। H2SO4. H2SO3. H2SO3, H2SO4 है ना, H2SO5, H2H2O3, H2H2O6, H2H2O7, then H2H2O8. All these are the oxo acids of sulfur. Similarly, if I write oxo acids of phosphorus, tell me, जल्दी बताओ। H3PO4. H3PO2, H3PO3, H3PO4, H4P2O5, H4P2O6, and H4P2O7. These are the oxo acids of phosphorus. क्लियर हो रहा है सबको? अरे क्लियर हो रहा है? Yes, sir. अगर मैंने बोला ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, बताओ क्या होगा। क्लोरीन, ऑक्सो एसिड आया मतलब 3, 1 2 3, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। बताओ, देखो HClO, HClO2, HClO3, HClO4, these are the oxo acids।
सबको क्लियर? सबको क्लियर? Yes, sir. Okay. Take the screenshot of this one. Take the screenshot. कहां से आया ये ऑक्सो एसिड? देख लो कहां से आया ये ऑक्सो एसिड। तो अगर कोई ऑक्साइड के साथ हम वाटर ऐड कर लें तो आता है ऑक्सो एसिड। ऑक्साइड में वो जिसका ऑक्साइड है वो मेटल वो एटम रहता है और ऑक्सीजन भी रहता है। अगर मैं किसी का ऑक्साइड के साथ अगर मैं ऐड कर लूं वाटर मॉलिक्यूल तो फिर वो हो जाता है ऑक्सो एसिड। सिमिलरली किसी का ऑक्सो एसिड से अगर मैं वाटर माइनस कर लूं वो हो जाएगा ऑक्साइड। एग्जांपल देता हूं समझ में आएगा। मैंने बोला ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ऑक्सो एसिड। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड माइनस वाटर क्या हो जाएगा? ऑक्साइड होगा कि नहीं होगा? अरे सबको समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? Yes. ओके तो कोई भी ऑक्साइड के साथ अगर वाटर ऐड करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसको ऑक्सो एसिड बोलेंगे। अगर रिवर्स बोले ऑक्सो एसिड से अगर वाटर माइनस कर दें तो ऑक्साइड बनेगा। और इसको यहाँ पे पर्टिकुलरली अनहाइड्राइड बोला जाएगा क्योंकि अनहाइड्राइड मतलब वाटर रिमूव होने के बाद जो बन रहा है उसको अनहाइड्राइड बोलते हैं, है ना। मैं एग्जांपल लेता हूँ समझ में आएगा। मैं यहाँ पे बोला SO3 प्लस वाटर ऐड करके देखो क्या आ रहा है। ऐड करके देखो क्या आ रहा है। सबको मिला दो, पूरा मिलाओ। रिएक्शन H2SO4 हाँ तो अगर पूछा जाए, ध्यान से सुनो, अगर पूछा जाए व्हाट इज द ऑक्सो एसिड ऑफ SO3 यू विल से H2SO। अगर पूछा जाए व्हाट इज द अनहाइड्राइड ऑफ H2SO4 सिंपली रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे H चला गया और SO3 इज आंसर। मतलब अगर मैं बोलूं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूं द ऑक्सो एसिड ऑफ SO3 इज H2SO4। यहां पे अगर मैं लिख लिया H2SO4 माइनस वाटर क्या बन जाएगा? SO3। So I'll write it as the anhydride of H2SO4 is SO3। क्या है सबको क्लियर हो रहा है? क्या है सबको क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तुम्हें बताना है, मैं पूछूंगा तुम लोग बताओगे। फाइंड आउट द अनहाइड्राइड। ये एंट्रेंस में से क्वेश्चन आता है। अनहाइड्राइड ऑफ फॉलोइंग ऑक्सो एसिड। मैं यहां पे लिखूंगा ऑक्सो एसिड और यहां पे लिखूंगा अनहाइड्राइड। मैंने यहां पे लिखा बेटा H4P2O7। बताओ। Sir, H2P2O6. नो क्या लिखा मैं? ऑक्सो एसिड से P2O3 वाटर जाने के बाद, एक मिनट, ऑक्सो एसिड से वाटर जाने के बाद क्या रहेगा? अनहाइड्राइड। जो ये ऑक्साइड है बेटा तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रह सकता है। इस केस में क्या हुआ? दो ही हाइड्रोजन था, हम इसीलिए एक वाटर निकाले। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो मैं यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकालना है 2H2O। मतलब ये जो अनहाइड्राइड होगा ना बेटा, अनहाइड्राइड मींस ऑक्साइड। अगर हाइड्रोजन रह जाएगा जैसे तू बोला H2P2O6 तो फिर अगेन ऑक्सो एसिड हो गया। हमें अनहाइड्राइड बोलना है और ऑक्साइड बोलना है ताकि हमें हाइड्रोजन साफ कर देना, नहीं रहेगा। P2O5, sir. Yes. So you have to remove 2 water molecules. You have to remove 2 water molecules. So you'll be getting 2 water molecules means H2O, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 2H2O, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। क्या बन गया? P2O5. ओके चलो नेक्स्ट मैंने बोला H2SO3। H2SO3 SO2 sir. SO2 सल्फर डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट मैंने बोला HNO3, HNO3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो एक H को और एक H कैसे निकालेगा, मतलब HO निकालेगा। देखो अगर तुम्हें ऐसा मिला इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट हाइड्रोजन है, तो रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल। हियर H2, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है। यहाँ पे 4 है, 2 निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है बेटा। कभी तुम्हें ऐसे भी मिलेगा H3PO4, यहाँ पे 3 है। देखो एक H2 है, H2SO4 हुआ, H2SO3 हुआ, H2CO3 हुआ, ये सब में कोई दिक्कत नहीं। एक वाटर मॉलिक्यूल निकालो जो बच गया ऑक्साइड है। अगर H4 आया, H6 आया, ऐसा कुछ अगर आया तो क्या करोगे? जितना वाटर निकल सकता निकाल। तो बोलोगे सर अगर ऐसा आया HNO3 और H3PO4 ऐसा आया तो ये ऑड है, इसके पास इनकम्प्लीट है, मतलब 2 हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 3 है, लेकिन फिर भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो एक रह जाएगा। इस केस में क्या करोगे? ध्यान से सुनो, बहुत इजी है। अगर अच्छा ये बताओ मुझे, अगर ये ऑड है तो उसको डबल कर लो। अगर ऑड है उसको डबल कर लो, चाहे लेस है ऑड है डबल कर लो, ये है उसको डबल कर लो। अगर इसको डबल करके फिर वाटर निकालो, डबल करके फिर वाटर निकालो। अगर इसको डबल कर दिया जाए, ध्यान से देखो, डबल कर दिया जाए क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6। अभी वाटर निकालो, क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? NO5 डबल किया गया, N2O5। N2O। डन। अभी इसको डबल करेंगे, 3 है और है, डबल करेंगे, लेकिन डबल करने के बाद 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हमें हाइड्रोजन रखना ही नहीं है, तो हमें 3 वाटर मॉलिक्यूल निकालना होगा। डबल करोगे इट विल बी H6P2 एंड O8। अभी इससे 3 वाटर मॉलिक्यूल निकालो, निकाल के बताओ। P2O5 P2O5 है ना, दोनों सेम हो गया, कोई इशू नहीं। सबको क्लियर हो रहा है चीज कैसे निकालते हैं इसको? yes sir yes sir yes sir Direct question will get this type of question directly in your NEET and JEE main exam। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और जैसे दिया होगा तुम अभी जो समझ में आ रहा होगा, ये तो कभी नहीं देगा। H2SO3 का ऑक्सीडेट क्या है वो कभी नहीं देगा। H2SO4 का मतलब अनाइड्राइड, H2SO4 का अनाइड्राइड कौन है? कभी नहीं देगा। H2SO3 का अनाइड्राइड कभी नहीं देगा, है ना। ये आ सकता है, ज्यादा चांस है इनका आने का, क्योंकि तुम लोग यार वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, कुछ बच्चे चालाकी से क्या करते हैं देख लो। यहाँ से एक H, यहाँ से जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहाँ से एक H, यहाँ से दो ऑक्सीजन निकाल देते हैं और बोल देते हैं NO, और NO विल बी इन द फर्स्ट ऑप्शन। जैसे H2O है ना, H2O 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, जल्दबाजी में क्या करते हैं, एक H 2 ऑक्सीजन निकाल देते हैं, HO2। क्या वाटर मॉलिक्यूल है? क्या वाटर मॉलिक्यूल है वो? no sir है ना। तो तुम्हारे पास इस ऑप्शन में होगा, इसका ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, और इसका ऑप्शन में क्या क्या था? NO था, देन NO2 था, NO3 था, N2O5 था, लाइक दिस। तो स्टूडेंट सोचेंगे यार जिनको पता नहीं होगा, ये तो एक N है, तो N2O5 कहां से आएगा? लेकिन आंसर क्या है एग्जैक्टली? N2O5, बिकॉज फॉर द ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 टू कन्वर्ट इट इनटू इवन। देन जितना हाइड्रोजन है उसको देख के हम कितना वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे वो डिसाइड किया जाएगा। सबको क्लियर हुआ? yes sir सबको क्लियर हुआ क्या? yes sir ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम ऑक्सो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन नहीं किए, मैंने बस ऑक्सो एसिड किसको बोलते हैं, उससे अनाइड्राइड कैसे बनता है ना। अच्छा अगर उल्टा मैंने पूछा, देख लो, अगर मैंने उल्टा पूछा, मैंने बोला N2O3 का ये अनाइड्राइड है ना, या तो मैंने बोला Cl2O7 ये बोला ये अनाइड्राइड है, इसका ऑक्सो एसिड पूछा क्या होगा बताओ? इसका ऑक्सो एसिड क्या होगा? रिवर्स है, यू हैव टू ऐड वाटर मॉलिक्यूल, बताओ क्या होगा? जल्दी। H2Cl2O8 तो मतलब HClO4। यस, तो अगर हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, अगर मैं Cl2O7 के साथ वाटर ऐड करता हूँ तो फिर ये H2Cl2O8 होगा। ऐसा कंपाउंड नहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, मैंने लिस्ट दिया था, नहीं करता है ऐसे। तो ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे?
2 HClO4. So answer is HClO4. Done. क्लियर हुआ सबको? अरे हो रहा है? Yes, sir. चलो इसको लिख लो इसको लिख लो, फिर मैं इरेज करूंगा. तो अभी मैं लिख रहा हूं ऑक्सो एसिड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सो एसिड्स. यस, see, I'll write HClO, HClO2 and HClO3 and HClO4. तो सेंट्रल आइटम कौन है? सेंट्रल आइटम कौन है? ध्यान से सुनो, किसको सेंट्रल आइटम बोलते हैं? हाइड्रोजन कभी सेंट्रल आइटम नहीं हो सकता है. जैसे कुछ स्टूडेंट को मैंने पूछा सेंट्रल आइटम क्या होता है, बोलते हैं सर जो सेंटर में होता है सेंट्रल आइटम. तो सेंट्रल आइटम होता क्या, देख लो. अगर मैं ऐसे लिखता तो HOCl, सेंट्रल आइटम कौन है? सेंट्रल आइटम कौन है? क्लोरीन है. क्लोरीन ही होगा. तो कैसे डिसाइड करते हैं सेंट्रल आइटम? ध्यान से सुनो मेथड देखो. एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यस, द एटम विच हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हाइड्रोजन कभी नहीं हो सकता है. हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन में छोड़ दो, बाकी जो एटम्स बच गए उनमें से जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो है सेंट्रल आइटम. एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो. एक्सेप्ट हाइड्रोजन, द एटम विच हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नोन एज सेंट्रल आइटम. तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन यहाँ पे दो अलग है, Cl एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसका 3.0. यही सेंट्रल आइटम. तो चाहे मिडिल में रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे ऐसा लिखा गया तो भी यही है, ये दोनों सेम है. ऐसे भी लिखा जाए तो भी सेंट्रल आइटम Cl ही है, ऑक्सीजन कभी नहीं हो सकता है. ओके डन. तो अभी देखते हैं हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट. ध्यान से देखो इसको. यहाँ पे एक -2 हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे मैं कितना लिखूं ताकि ये न्यूट्रल हो जाए? बता जल्दी. ये ऑक्सीजन -2, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का +1. तो यहाँ पे मैं कितना चार्ज लिखूं ताकि पूरा न्यूट्रल हो जाए? जल्दी बताओ. +1 ग्रीन में लिखते हैं. यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, एक का -2, दो का -4. आई हैव रिटन ओवर हियर. एंड यहाँ पे +1. यहाँ पे कितना लिखूं न्यूट्रल होगा? जल्दी बोलो. +3. यहाँ पे बोलो. +5. +5. यहाँ पे बोलो. +7. आ जाओ इस पॉइंट पे. कौन ज्यादा एसिडिक है बेटा? कौन ज्यादा एसिडिक है? ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल आइटम, जिसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, जिसका ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक है. तो हाईएस्ट किसका? हाईएस्ट किसका? बस दिस आंसर. ये क्वेश्चन नीट में, जेईई मेन में, जेईई एडवांस सब में आ चुका है. सेम क्वेश्चन तो तुम्हारे सामने है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ चुका है. लॉजिक यही था. नेक्स्ट में लिख रहा हूं HClO4, HBrO4, HiO4. बताओ. ये नहीं होगा तो और कोई होगा. ये पार्ट अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब ये केमिकल बॉन्डिंग में आएगा तब जाके समझ में आएगा. ये दोनों देखो, देख लो, समझ में आ जाएगा तुम्हें कौन सा फैक्टर यहाँ पे काम करेगा. सर HiO4 देख लो,
यहाँ पे ये तब होगा जब सेंट्रल एटम जो है वो सेम है। यहाँ पे तब होगा जब ये सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है। तो सेंट्रल एटम प्रेजेंट हियर, बताओ जल्दी कौन कौन है? ClBr, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ही +7, इसका ही +7, इसका ही +7। तुम बोलोगे सर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बदल दिया, एटम भी बदल दिया, तो मैं भी नहीं बोल सकता, जो क्वेश्चन बना है वो भी नहीं बोल सकता, वो एक्सपेरिमेंटल हो जाए। या तो ऑक्सीजन को फिक्स रखेगा, सेंट्रल एटम को बदल देगा, या तो सेंट्रल एटम को फिक्स रखेगा, ऑक्सीजन को बदल देगा। दोनों बदल नहीं सकता है, चिंता मत करो, कभी नहीं बदल सकता है, दोनों नहीं बदल सकता। देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम सेम है बेटा, एक क्लोरीन, हाँ, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ये ऐसे कर सकता है। कीपिंग द ऑक्सीजन कांस्टेंट द सेंट्रल एटम कैन बी चेंज। सेंट्रल एटम आया तो ये लॉजिक, क्या क्या लिखा गया, कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जल्दी बताओ। डायरेक्ट। तो क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? मतलब साइज अगर बड़ा है तो एसिड डिस्टेंस कम है, साइज अगर छोटा है तो एसिड डिस्टेंस बड़ा है। तो साइज छोटा किसका है? सेंट्रल एटम में। जल्दी, क्लोरीन का। बस काम खत्म, इतना क्या सोच रहे हो? जो चीज के तुम्हें बता दिया गया, इतना सोचना क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फॉलो सीवीआई अटैक, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। हमें नहीं चाहिए ना, हमें छोटा चाहिए। छोटा कौन है? खत्म काम। क्लियर हुआ सबको? अरे हुआ क्लियर? यस सर। ओके, सो आज ऑफिशियली तुम्हारा पीरियडिक क्लासिफिकेशन खत्म होता है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे ऑफिशियली तुम्हारा पीरियडिक क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले एक बार वो जो पैरामीटर्स है, कौन सा? साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पार्ट हुआ, 4 पार्ट। एंड द लास्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो केमिकल बॉन्डिंग में, सॉरी, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में था। इसको मिनिमम अच्छे से पढ़ के आओगे। और केमिकल बॉन्डिंग सुनो, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए। अगर केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारा क्लियर हुआ और काफी चीज क्लियर हो जाएगा, 99% तुम अच्छा करोगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो वो पढ़ने जा रहे हैं हम, केमिकल बॉन्डिंग, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको पहले पढ़ के नेक्स्ट क्लास में बैठना। ओके ऑल ऑफ यू? ओके ऑल ऑफ यू बेटा? तो ट्यूसडे के टेस्ट के लिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह भी प्रिपेयर करें? हाँ बिल्कुल, आज जहां तक पढ़ाया गया वहां तक आएगा। अच्छा, ट्यूसडे का क्या बोला गया तुम लोगों को?